Welcome to Arihant everyone. Today we are going to discuss the specimen question paper of physics of your ICSE 2026 examination. Okay. So I hope you must be aware of the structure of the paper. It consists of 80 marks. Total maximum marks will be 80 and it is of 2 hours, a 2-hour long paper. And I hope that you do give a read to all the instructions beforehand whenever you attempt a paper, either for your practice sessions or in your actual examinations. So do give a read to all of these important instructions beforehand. Okay, let's begin with the paper now. All right. Okay, so let's read out the first question. You need to choose the correct answers to the questions from the given options. Okay. A moment of couple has a tendency to rotate the body in an anti-clockwise direction. The moment of couple is taken as what? Okay, so it's a standard convention. Okay, we need to know this, that if you are going to rotate the body in anti-clockwise direction, okay, then the sign convention says that the moment of couple is taken as positive. Okay, this is a convention, you should know this, that it is supposed to be taken as positive if it is rotated in an anti-clockwise direction. Okay, and you can assume that, you can clearly say that it would be negative in the counterclockwise. Okay, clockwise, sorry. The kinetic energy of a given body depends on what? Okay, so kinetic energy, as we all understand, it's nothing but half times mass times velocity square. So clearly, as you can see, that it does not depend on position, center of gravity or displacement. It depends on momentum. Momentum is nothing but mass times velocity, right? So clearly we can say that option C is the correct answer. Let's move ahead. During power production in coal-based thermoelectric power plant, the question says the correct sequence of energy conversions taking places. Okay, so we need to understand that during the power production in a coal-based thermoelectric power plant, what is burning? Coal is burning. तो coal burn हो रहा है बच्चों, तो उससे क्या होगा? Heat produce होगा, right? Coal is burnt and it provides heat. Now that heat ought to be used in mechanical form. It is used, since it is a heat energy, right? It's a form of energy. It is used to rotate the turbines, okay, in a mechanical form. Then after rotating the turbine, it converts the mechanical energy into electrical energy, right? So what are we getting at? We are obtaining heat, mechanical energy and then electrical energy. So B option is the correct answer. I hope you guys understood. Okay, let's move ahead. Anita used a single movable pulley to lift a bucket of water from a well. Okay, she lubricates the pulley. Now you need to understand this. Okay, while you read the problem, while you read the question, you need to understand that if she is lubricating the pulley, what does lubrication does? Lubrication reduces the friction. Okay, if there were some sort of friction that ought to be there, lubrication is going to reduce that. Okay, all right. Which of the following statement is true regarding the performance of the pulley? Okay, mechanical advantage decreases and efficiency increases. Okay, efficiency is definitely going to increase. Velocity ratio increases and efficiency decreases. No, efficiency is not going to decrease. This is a clear-cut wrong one. Mechanical advantage remains unchanged and efficiency increases. Velocity ratio remains unchanged and efficiency increases. This is what the correct answer is. Velocity ratio is going to remain same and efficiency will increase. Why efficiency will increase? Because you are reducing the friction. Okay, the friction is being reduced as you have applied the lubrication on the pulley. So it's now relatively more easier. Okay, there was loss of energy earlier when you were using the rope through the pulley. When there was friction, there was loss of energy. Okay, you needed to do some extra work to overcome that. But in this case, since you have lubricated it now, अब उतना work आपको नहीं करना पड़ेगा, so it's easier, it's more effective, and the efficiency is definitely going to increase. Okay, if we talk about velocity ratio has nothing to do about lubrication. Okay, nothing to do about friction. If friction is in this case is not affecting definitely the velocity. Why? Because the amount of rope or the distance the rope is being covered
since Anita is pulling in a single movable pulley, the distance the rope is being covered when she's pulling the rope, and the distance the bucket is getting lifted, the distance covered by that bucket would be, it's going to be the same, right? It's going to be the same with respect to time, of course. So velocity is not going to differ in this case. The displacement is same per unit time. So you can say that velocity ratio remains unchanged. The D option is the correct one. Okay, let's move ahead. Inside the prism, during the dispersion of white light compared to blue, red light slows down less, refracts more. Slows down more, okay. So they want you to compare between red and blue color in a prism when refraction happens. Okay, so you can draw a rough diagram to understand what happens in general. Okay, let's use a different color rather, so that we can use separate colors to distinguish clearly, right? Okay, so there's your prism, and then a white light is getting incident over here. So I hope you already know that red is something which is going to be refracted the least, and violet, or you can say blue, is going to get refracted the most, right? The deviation, the difference in deviation is clearly visible between red and violet, okay, because red deviates the least and violet deviates the most. And since they are talking about blue color, since we are supposed to talk about blue color, this lies somewhere between here. Okay, this is somewhere between here. So still, if you compare between red and blue, you should know that red deviates lesser in comparison to blue, right? So since we know that refractive index is supposed to be inversely proportional to speed, okay, which has more refractive index, it is supposed to be lesser in speed, or it is going to be less slower. The speed is going to be slowing down less for that. Okay, so the correct answer for this problem is slows down less and refracts less. Okay, for if you talk about red, since its wavelength is also the most, okay, it's going to refract also less. As you can clearly see, it's not deviated much. If you compare it with the original white light, okay, I know I've drawn it with black color, but I hope you understand that this is nothing but white light. Okay, so as you can see, the red has deviated the least, so refracts the least, right? And it slows down less also, right? Because of the relation with the refractive index. I hope you understood this one also. When objects are viewed through the rising heat of campfire, they appear to shimmer. The optical phenomena responsible for this effect is what? Okay, तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके पास एक सिचुएशन है, you have a situation in which you have lit a campfire, okay, and now you are looking through the campfire. In order to understand this, okay, so if you are watching through the campfire, the objects or any person if sitting here, okay, so through the campfire you can clearly understand that there is going to be some sort of refraction of light, the bending of light, right? There's some sort of refraction of light, because you can clearly see that this campfire is going to change the temperature of the air. It will become lighter because hotter. It will become hotter, so lighter, right? And it is going to get mixed with the colder air. The colder air which is situated just above it, okay? So they are constantly getting mixed. The hotter ones being lighter, they are going to get lifted up, raised up, and they are going to get mixed with the colder ones. So because of this varying refractive indices, varying densities, the light is bending at different angles, and that is creating some sort of, you know, shimmery effect. Okay, this shimmering effect. So the answer is, the reason why is it happening is refraction. Okay, because of the bending of light, because of the varying densities of the medium, right? Perfect. Let's move ahead to the next problem. All right.
Okay, so the problem is saying that the convex lens with a focal length is given, an object at a distance, object distance is given. Okay, blurred image is obtained on the screen placed at a distance of 23 centimeter. It's clearly can be noted that the image is blurred. When you are obtaining the image on the screen, the image is blurred. Why is it happening? In order to obtain a clear image, the screen has to be moved. Okay, so we can clearly understand that the position of the screen is not apt. It is not correct. If we can move the screen, okay, accordingly, then we might be able to obtain a clearer image. Okay, so let's do that. Let's try to find that position of that screen. Okay, so since you guys already know that the lens formula is nothing but 1 by f is 1 by v minus 1 by u, you can use this one. Okay, you can use this formula. So let's put up the values. The focal length is plus 12 centimeter. Why plus 12, sir? Because it's a focal length of convex lens. So I hope you already know that it's going to be positive. Okay, then the u, object distance, it always comes as negative, minus 20 centimeter. You just need to put up these values in this formula. Okay, and I hope you can calculate this one. It's very easy. It will be shifted to the LHS left hand side, and it will become as v equals to 7 centimeter. Okay, 7 centimeter. Sorry, it's v equals to 30 centimeter. My bad. V equals to positive 30 centimeter. So positive means it's going to be at the right side. That's for sure. So we are placing the screen on the right, on the correct side. I should use the word correct, or the correct side. But since the distance is 30 centimeter and placing the screen at 23 centimeter, then definitely there's a gap of 7 centimeter. So you need to move it away. You need to move it away to a position very far from the lens, either towards or away from the lens. Yeah, away from the lens. Okay, from the lens you need to move away so that it can cover a distance of 30 centimeter in totality, and that's how you can obtain a clearer image, a clear image. Okay, I hope you understood this. Let's move ahead. Soldiers avoid firing at a target in foggy weather conditions. Okay, in foggy weather, light gets scattered by tiny droplets, reducing visibility. Very good. It's a perfect answer and a correct explanation as well. Okay, so soldiers avoid firing at target in foggy weather conditions. Foggy weather conditions में क्या होगा बच्चों? Particles से light scatter हो जाएगी, है ना? Tiny droplets से scattering जो होती है वो tiny droplets से होती है, हमने पढ़ा हुआ है ना? We know why how scattering can be observed, right? And it definitely reduces the visibility. I hope you know that too. बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग. ठीक है, तो यही रीजन होता है कि फॉगी वेदर में अगर सोल्जर्स टारगेट पे फायर करेंगे तो टारगेट पे नहीं हिट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली टारगेट इज ऑल्सो नॉट क्लियर टू देम. ओके, दैट इज नॉट अ क्लियर पोजिशन, राइट, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग. सो इट्स सी ऑप्शन. A and R both are true, and R is the correct explanation of A as well, right? Okay, move ahead. Two sound waves X and Y have the same amplitude and the same wave pattern, but their frequencies are 60 Hz and 120 Hz respectively. Then okay, perfect. X will be shriller and Y will be grave. Okay, shrilling. So I hope you know that if frequency would be more, it will be a shrill sound, right? Frequency more. So you can remember this through a clear live example that females tends to have more frequency, right? The more shrill sound, the shrill side of sound, right? Because of the higher frequency. It's not obviously universal, but in general, if you talk about that, if you just want to remember that, so the more the frequency, the more shrill would be the sound, right? So you can say that Y would be shriller and X would be, you can say, grave. So this would be the correct answer. आगे चलते हैं. Okay. In the circuit given below, identify the correct relation between the currents flowing through 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm resistor. Okay, it's very easy. आपको पैरेलल में 2 रजिस्टर्स दिए हुए, 3 रजिस्टर्स दिए हुए, 2 रजिस्टर्स आपके सीरीज में हैं, तो इनको आप क्या कर दोगे? यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज. इट विल बी इक्विवेलेंट टू 5 ohm, एंड दिस 5 ohm वुड बी इन पैरेलल विद दिस 5 ohm. पैरेलल कनेक्शन. Okay, I hope you know that how you can solve the parallel connection. Okay, so I hope you know one thing more, that if there's only one power supply and they both have the same value, 5 ohm and 5 ohm, being the same value of resistance,
the current would be same in both of them, right? So the current through 2 ohm resistor, current would be same in both of these branches. So C option would be the correct answer. Current would be same in both of the branches, right? It's not the rule. The rule is potential drop would be same in parallel connection, but the resistor, the value of the resistor is same. That's why we have concluded that, right? Okay. According to the old convention, the color of earth wire. Okay. I hope you remember this one. The old convention said that the color of earth wire needed to be green. Okay. This is just a knowledge-based problem. For an ideal step-up transformer, okay, what is the relation between primary voltage and secondary voltage? Okay, so, okay, what is the relation between number of turns? Yeah, this is clearly the wrong ones, but if you talk about number of turns, they need to be same for step-up transformer, ideal step-up transformer. Okay, C option is the correct answer. Heat capacity of the body. Okay. Okay, so in this one, they just want you to know the definition. Okay, so the definition says how much energy is needed to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius. That is the heat capacity of that body. Okay, आप कुछ heat provide कर रहे हो और अगर किसी body का temperature let's say 30 डिग्री सेल्सियस था, तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री जंप कर गया वो, तो आपने जो heat provide करी, जो energy provide करी, वो ही आपकी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है. ठीक है, हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन होता है ये बेसिकली. ठीक है, सो दिट्स अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन. आई होप यू नो दिस टू. आगे चलते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड. ओके, अगेन द डेफिनेशन ऑफ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, इट्स नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये सारे जो आपको डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों, ये आपको याद रखने. यू नीड टू रिमेंबर दीज. ओके, आपको डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को टिक करना है विद इन सेकेंड्स. यू कैन नॉट स्पेंड a lot of time in these. Okay, anyway they are not higher marks problem. Okay, इनके मार्क्स भी बहुत कम होते हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है इन पे. अगला प्रॉब्लम करते हैं. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन्स एंड 95 प्रोटॉन्स. ओके, आपको बता रखा है कि एक एटम में 146 तो क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, और 95 क्या है? प्रोटॉन्स हैं. इट डिकेज आफ्टर एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल को आपने एमिट कर दिया. नाउ इफ यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? 2 and 4. ओके, हीलियम. आई होप यू नो दैट. बट आपको जो मेन चीज इसमें याद रखनी है, अटोमिक नंबर 2, मास नंबर 4. Okay, number of protons is going to be 2 in alpha particles, and protons plus neutrons will be equals to 4 in alpha particle. Okay, how many protons and neutrons are left in the nucleus after alpha emission? Okay, तो बेसिकली आपने क्या किया? इस एटम से माइनस करवा दिया. एटम जिसमें कि 95 तो प्रोटॉन्स थे, और 95 प्लस 146 आपका क्या था? मास नंबर था. आप बोल सकते हैं ऐसा. ठीक है, इसमें से आपने माइनस कर दिया एक अल्फा पार्टिकल, एमिट हो गया ना अल्फा पार्टिकल, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे ये बताना है. ओके, तो 95 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 95 सब्ट्रैक्टेड 2? इट्स नथिंग बट 93. तो प्रोटॉन्स आर गोइंग टू बी 93. तो ए एंड सी ऑप्शन कुड बी द राइट आंसर. न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो न्यूट्रॉन्स आपके कितने हो गए? -4. Okay, 4 needed to be minus in this neutrons. Okay, तो 146 minus 4 कितना हो जाएगा? 142. राइट, 2 आपके प्रोटॉन चले गए, और आपके अल्फा पार्टिकल की वजह से 4 जो मास नंबर है, 2 न्यूट्रॉन चले गए. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 144 वुड बी योर करेक्ट आंसर. ओके, क्योंकि 2 तो प्रोटॉन गए एंड 2 न्यूट्रॉन गए. 2 न्यूट्रॉन्स यू नीड टू सब्ट्रैक्ट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट पार्ट. सो दैट्स all about section 1, first question that has been done. Now we need to solve the second question. All right, let's jump to a second question of ours, second section you can say. Okay, let's solve the first problem. Okay, you need to complete the following by choosing the correct answer from the bracket. Okay, it's more like a fill in the blank part. So first option says a dash
you need to choose between these two, class 2 or class 3 lever will always have mechanical advantage. MA is mechanical advantage greater than 1. So mechanical advantage, I hope you already know, I hope you understand that how it says that how much lesser effort is needed to lift up a load, all right, or to you can say raise a load, right? So mechanical advantage is greater than 1 for class 2 lever pulleys, right? Class 2 lever, I hope you know that, right? A boy uses a GPS device to locate his missing friend in a crowded area. The system primarily uses ultraviolet waves or microwaves. I hope you know this one already, because you need to just know that GPS use microwaves. GPS use microwaves. Okay, don't need to think twice. If you know that GPS uses microwaves, then you can directly mark it as an answer. Unit of specific heat capacity. Okay, a specific heat capacity, I hope you remember that it is nothing but meter square per second square multiplied by Kelvin. And specific heat capacity, I think we have already discussed, that is nothing but the energy used or consumed to rise temperature by 1 degree Celsius of any body, right? Perfect. Okay, so this is the answer. The threshold of hearing is what? Threshold of hearing. Now what is threshold of hearing? Threshold of hearing यानी क्या होता है कि आप की रेंजेस क्या है ना, कौन से रेंजेस पे आप जो है सुन सकते हो, उससे कम या ज़्यादा पे आप सुन नहीं पाओगे. तो इट्स 0 डेसिबल. आई होप यू नो दैट. ओके, द थ्रेशोल्ड इज 0 डेसिबल. Two copper wires can have different resistivity if they have different lengths or temperature. Now they are talking about resistivity बच्चों. अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे रेजिस्टेंस के साथ में तो आप लेंथ जल्दबाजी में मार्क कर सकते हो. ओके, सो डू नॉट बी इन रश. R is equals to resistivity times length upon area. So do not fall for that. They are talking about resistivity, which is an intrinsic property. ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, लेंथ के साथ नहीं होगी. तो आंसर इज टेम्परेचर. The reaction responsible for the production of energy in the sun is production of energy in the sun. क्या यूज होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन. ओके, सन में कंटिन्यूसली क्या हो रखा है? न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, राइट? होता रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इन कॉलम ए टू द क्लास ऑफ लीवर इन कॉलम बी. ओके, देयर इज अ मूवमेंट इन ए एंड इन कॉलम बी. आपको कुछ क्लासेस दी हुई है, आपको मैच करना है. ओके, पहला क्या बोल रहा है? नॉडिंग हेड. नॉडिंग हेड मतलब आपका हेड नॉड कर रहा है. उस केस में कौन सा क्लास होगा लीवर का? तो आपको पता होना चाहिए. आपका स्पाइन जो है वो फुलक्रम बन जाता है इसमें. क्या बन जाता है? फुलक्रम, स्पाइन. ओके, सो इट्स डेफिनेटली द क्लास 1. कौन सा क्लास हो जाएगा बच्चों? ये क्लास 1. सो यू कैन मार्क, यू कैन मैच दिस वन. लिफ्टिंग द बॉडी वेट ऑन योर टोज. आपका बॉडी वेट जब आप ऐसे टोज पे लिफ्ट करते हो तो आपका फुलक्रम क्या हो जाता है? टोज बन जाता है. फुलक्रम इज टोज. ओके, सो दिस इज नथिंग बट क्लास 2. क्लास 2 टाइप लीवर, राइट? आगे चलते हैं. नेम द वेव यूज्ड फॉर एको डेप्थ साउंडिंग. एको डेप्थ साउंडिंग, यू शुड रिमेंबर दिस वन. ओके, एको डेप्थ साउंडिंग किस में यूज होती है? जब आपको ओशियन की डेप्थ्स निकालनी हो. ओके, इफ यू हैव अ शिप, sort of ship something, and then you are using the transmitter, you are transmitting a sound pulse, okay, towards the depth of ocean, and it reflects back, and then you receive it. You are transmitting it and then you are receiving it. Okay, so that is sort of echo depth sounding. Okay, this is used to measure the depth of the ocean, right? So what kind of wave that you use for this? It's nothing but ultrasonic. Okay, ultrasonic. Give one reason why the waves mentioned is used for the above purpose. For this same reason, ultrasonic can go undeviated to a very long depths. Okay, काफ़ी डेप्थ कवर कर सकती है डेविएट हुए बिना. ओके, और इसका बीम जो नैरो भी नहीं होता. तो ये एक अच्छा रीज़न आप बोल सकते हैं कि दैट्स व्हाई यू यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स. ओके, बिकॉज दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट डेविएशन एंड दे आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम और कैन बी कन्फाइंड टू अ नैरो बीम. मीडियम जो है उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता इतना ईजीली, बिकॉज इफ मीडियम वुड बी एब्जॉर्बिंग इट देन
it's not easy for you to detect the depth clearly. Okay, so that's why you use ultrasonic waves. So that's all for the second section as well. Let's jump to next question, question number 3. Okay, let's solve this one. This is more at a bit comprehensive side. All right, let's read the first one. Refer to the diagram given below. A lens is made of two materials of different refractive indices. Okay, so a lens is been given in the diagram, which is clearly, it can be seen that they are it is composed of two different refractive indices. Okay, mu1 and mu2. Perfect. If the rays are coming from a distant object, then how many images will be seen? Okay, now I hope you understand that if the rays are coming from a distant object, that means you can safely say that they might be coming from somewhere infinity, or they will be sort of parallel rays, right? So if you understand it in this way, that parallel rays might be coming from a distant object. Okay, so in both of these cases, since the refractive index is different, the indices are different, the bending of light would be different, right? So if, let's say, mu1 could bend like this, then mu2 might be able to bend like this. Okay, because of the difference in refractive indices, mu1 is not equal to mu2. That's not been given in the problem. So the bending would be different, right? All right. So how many images will be seen? Two different images. I hope you understand this. Two different images can be seen because of the difference in bending of light, right? Perfect. Next problem. A glass lens always forms a virtual, erect and diminished image of an object kept in front of it. Identify the lens. Okay. Concave lens. It's a standard definition of concave lens. These are the properties that it shows, that forms a virtual image, erect image, diminished image, okay, of an object, no matter where the position is. Okay, so it's a concave lens. All right, let's solve the next problem. The image given below below displays kilowatt-hour meter reading recorded two distinct points in time. All right, so it's like a very relatable problem. आपके हाउस होल्ड में आपने देखा होगा, आपका जो इलेक्ट्रिकल मीटर है, आपका जो मीटर लगा हुआ है घर पे, जो आपकी रीडिंग नोट करता है आपकी, तो आप कंजप्शन जो नोट कर सकते हो आपकी, उसके थ्रू आपको क्या पता है, आप निकाल भी सकते हो ना। एक इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको फॉर एन एग्जांपल निकालना है कि कितना कंजप्शन हो रहा है उसकी वजह से, है ना, कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसकी वजह से, तो आप आई होप यू नो दैट कि यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट. सो वन ऑफ दोज एग्जांपल इज बिन गिवन इन दिस प्रॉब्लम. इसको सॉल्व करते हैं. पहला रीडिंग आपका आ रहा है 856 किलोवाट आवर के अराउंड, है ना. किलोवाट आवर यानी एक यूनिट के बराबर भी आप बोल सकते हैं ना, देख 856 यूनिट्स. एंड देन नेक्स्ट वन यू कैन से that it is 1567 kilowatt hour or units, right? So there's a clear difference between these two. आगे बोल रहा है assuming a continuously running 2000 watt air conditioner as the sole electrical device. sole मतलब केवल यही लगा हुआ है, जो ये रीडिंग में डिफरेंस ला रहा है ना, वो केवल AC ही ला रहा है. ये जो AC है आपका एयर कंडीशनर 2000 वाट का रेटेड पावर, ये ही आपका रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो है इलेक्ट्रिकल कंजप्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है और रीडिंग चेंज हो रहा है. ओके, सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टाइम इंटरवल इन आवर्स बिटवीन द 2 मीटर रीडिंग्स. ओके, परफेक्ट. टाइम इंटरवल निकालना है आपको, बहुत ईजी है. कितना एनर्जी में डिफरेंस आया पहले आप ये निकाल लीजिए. कंजप्शन में कितना डिफरेंस आया, 1567 माइनस 856. ठीक है, ये आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा. ये 1 1 एंड 7 711 किलो वॉट आवर. अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें वॉट आवर्स में तो ये हो जाएगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली वॉट आवर्स, नॉट अप्रोक्सीमेटली, इक्वल्स टू एग्जैक्टली 711,000 watt hours. So this will be the energy consumed by this AC. Now you need to find the time interval. So I hope you know that it's nothing but the time interval would be energy divided by rated power. Now energy you have calculated, rated power has been given 2000 watt. So I hope you can calculate it. It's nothing but 711,000 divided by 2000. So you can cancel out these 3 zeros and the answer would be nothing but 711 divided by 2 or 355.5 hours. Okay, very easy. Let's move ahead.
It's been given ABCD is a rectangular polygon, pentagon with its center of gravity at O. कौन सा पॉलीगन ये दिया हुआ है? पेंटागन दिया हुआ है आपको, उसमें बोला हुआ है कि व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन इनमें से ऑफ द न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो डेफिनेटली आपने कुछ चेंजेस किए होंगे इस सिनेरियो में. इफ अ पीस ऑफ क्ले इज अटैच टू पॉइंट ए. ओके, तो इस सेटअप में आपने ए पॉइंट पे एक पीस अटैच कर दिया. पहले केस में आपने क्या किया, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिवन था ओ पे था, ए पे आपने क्ले का पीस अटैच कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंज आएगा, है ना. क्ले का कुछ ना कुछ मास होगा जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज ला देगा. अब ऑब्वियसली बात है कि इस सेटअप में अगर ए पॉइंट पे आपने कुछ मास अटैच किया है, क्ले अटैच किया है, तो ओ से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, है ना. जिस डायरेक्शन में आपने मास बढ़ाया है उस डायरेक्शन में आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगी, राइट. सो दैट शिफ्ट कुड बी डिड्यूस्ड और अज्यूम्ड एज दैट इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो समवेयर ये एक्स के अबाउट हो जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट पे तो अभी भी नहीं आएगा ना, थोड़ा आपका मास तो ऊपर भी है अभी लोकेटेड, तो ए पॉइंट पे नहीं आएगा लेकिन एक्स पे जरूर आ जाएगा. तो आंसर वुड बी एक्स. आपका फर्स्ट केस में एक्स पे चला जाएगा ये. इट्स नॉट क्रॉस, इट्स एक्स. ओके, आई कैन राइट इट एज दिस वन. ओके, इफ द पेंटागन इज कट अलोंग द लाइन पी क्यू, तब बताओ पी क्यू के अलोंग आपने कट कर दिया. एज यू कैन सी सिमेट्रिकल है, इसके नीचे पूरा जो पोर्शन है वो सिमेट्रिकल है. तो अगर आप पी क्यू पे कट कर दोगे और केवल ऊपर वाला देखोगे, ऊपर वाला पोर्शन, ओके, द अबव पोर्शन, सो यू कैन क्लियरली अज्यूम कि अगर नीचे का मास कम हो गया है, इफ आई हैव रिमूव्ड दिस पार्ट, if I removed this part, then the center of gravity needs to be shifted towards upward direction, क्योंकि नीचे का मास तो कम हो गया है. तो जो मास नीचे वाला, डाउन साइड वाला कंट्रीब्यूट कर रहा था आपका ओ तक लाने में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो तो चला गया है. तो उसकी वजह से क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जेड पे. और सिंस ये सिमेट्रिकल रिडक्शन आपने किया है, अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता तो ये इधर उधर जा सकता था, लेफ्ट या राइट वर्ड्स, बट सिंस ये सिमेट्रिकल रिडक्शन हुआ है, इट विल एग्जैक्टली गो इन द लाइन अलोंग साइड ओ. ठीक है, तो ये ओ के ही लाइन अलोंग साइड जाएगा, तो z वुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, x एंड z वुड बी योर आंसर्स. आगे चलते हैं. A solid of mass 60 gram at this is placed in 150 grams of water at 20 degrees Celsius. The final steady temperature is 25 degrees Celsius. Okay. Calculate the heat capacity of the solid. Heat capacity निकालनी है आपको solid की. Okay. काफ़ी easy है. आपने क्या किया, एक solid लिया, उसको water में रख दिया. Solid लिया एक particular temperature पे और water में रख दिया जिसका temperature आपको given था. Now because of this difference in temperatures, आपका क्या होगा, heat transfer होगा, है ना. जितना heat ये अपने से release करेगा वो gain कर लेगा. थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए आपको, आई होप ये आपको पता होगा कि जितना ये रिलीज करेगा हीट उतना इसको गेन करना पड़ेगा. ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम निकाल सकते हैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमें निकालनी है. तो मिक्सचर करने की वजह से हमने क्या किया, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन हो गया. तो MC डेल्टा टी आपका जो सॉलिड का है, मेटल का है, MC डेल्टा टी जो कि हीट होता है वो इक्वल होना चाहिए MC डेल्टा टी वाटर के, यानी मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसको हम वैल्यूज पुट करेंगे सारी. मास तो आप क्लियरली यू कैन सी 60 ग्राम्स इसका दे रखा है, 150 ग्राम्स इसका दे रखा है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, C डैश इंटू 75 इक्वल्स टू 150 टाइम्स 4.2 इंटू 5 एंड योर आंसर वुड बी 42 जूल पर केल्विन, है ना. आई होप यू कैन सॉल्व दिस. वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम. द डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों. एक केस दे रखा है आपको, एक डायग्राम दे रखा है, उस पर बेस क्वेश्चन है. कॉपर वायर वूंड अराउंड अ यू शेप, एक यू शेप का आपने सॉफ्ट आयरन बार ले लिया और कॉपर वायर, उस पर कॉपर वायर की क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी. एन आयरन पिन इज ब्रॉट नियर द अरेंजमेंट. फर्स्ट सोर्स P एंड देन सोर्स Q आर कनेक्टेड अक्रॉस AB. तो दो सोर्स दिए हुए हैं. आई होप यू रिमेंबर दीज सिंबल्स. ये सिंबल्स आपको पता होनी चाहिए किसके हैं. ये है ऑल्टरनेटिंग करंट का AC का, और ये है आपका डायरेक्ट करंट का सिंबल. ठीक है, तो दोनों में आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ये. ईच ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे. ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं.
स्टेट ट्रू और फॉल्स, सोर्स P एज वेल एज सोर्स Q व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस AB कैन अट्रैक्ट आयरन पिन। अब आयरन पिन से अट्रैक्ट कब, आयरन पिन को अट्रैक्ट कब कर पाएगा ये सेटअप, जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, तो यू नो दैट कि आयरन पिन को वो अट्रैक्ट कर सकता है ना। अब AC सोर्स हो या DC सोर्स हो, करंट तो फ्लो करवाएगा ही ये, ठीक है, और आपको पता है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो दोनों ही सोर्स में इट्स ट्रू कि अगर आपने यहाँ पे A और B को कनेक्ट किया, सर्किट कंप्लीट किया बेसिकली आपने, ठीक है, तो आपका A और B के थ्रू अगर आपने कनेक्शन किया AC या DC सप्लाई से, तो आपका अट्रैक्ट जरूर होगा आयरन पिन, है ना। तो ये ट्रू है, आंसर इज इट्स ट्रू। जस्टिफाई आंसर, जस्टिफाई भी हमने कर दिया है, ठीक है, क्योंकि AC सोर्स और दोनों DC सोर्स दोनों क्या करेंगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा देंगे अराउंड इट, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर पे जब आप कॉपर की बाइंडिंग कर दी आपने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेडिएशन दैट इज एमिटेड ड्यूरिंग द डीके ऑफ न्यूक्लियस दैट हैज हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, दिस शुड यू शुड ऑलरेडी नो दिस, ओके, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। गामा रेडिएशन का हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा, ठीक है, गामा। Does the emission of the above mentioned radiation result in a change in mass number? No. गामा रेडिएशन जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, और ये क्या होती है कि ऑलमोस्ट मासलेस होती है, ठीक है, मासलेस यानी कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इनमें चेंजेस लाने की केपेबल नहीं है, कोई मास में चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। एडवांस ऑप्टिकल सेंसर्स इन एयर टू एयर मिसाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक आपको पैराग्राफ दे रखा है, यू नीड टू रीड दैट एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। Fiber optics cables to transmit light signals with minimum loss. This relies on a physical phenomena that confines light within the fibers. Okay, so this is your important line और स्टेटमेंट जिसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और ये अगर आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेकिंग द सिस्टम वेरी डिपेंडेबल फॉर गाइडिंग द missile precisely. Name this optical phenomena. Name the optical phenomena that allows light signals to remain confined within the fiber optical cable during transmission. अब ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनमें कौन सा ऑप्टिकल फिनोमेना यूज हुआ होता है ना, कौन सा होता है। सो दिस नथिंग बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनमें जो लाइट होती है वो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होती है, टोटली और इंटरनली, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस जो लॉसेस होते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो पूरी ट्रांसफ़र हो पा रही है ना, मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो पा रहा है एनर्जी का, तो इस वजह से आपका जो है एनर्जी लॉस भी मिनिमाइज हो जाता है और इसी वजह से कन्फाइन भी हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द टू मेन कंडीशन नेसेसरी फॉर दिस फिनोमेना टू अकर। अच्छा, TIR की बात हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सो आई होप यू नो द कंडीशंस फॉर TIR। डेंसर से रेयर मीडियम में जाना जरूरी है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस नीड्स टू बी इक्वल टू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डेंसर से रेयर में जाना ज़रूरी है लाइट। वेलकम टू अरिहंत अगेन। तो फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, सेक्शन बी। ओके, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक डायग्राम। द डायग्राम बिलो शोज अ फिश इन द टैंक एंड इट्स इमेज सीन ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। नाउ लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि आपको जो इमेजेस दिखेंगी, जो डायग्राम्स आपको एग्जाम में आएंगे, वो हो सकता है थोड़े अनक्लियर हो, थोड़े हेजी हो। ओके, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको ये पता होना चाहिए in order to understand these problems you just need to go intuitively। आपको ये कॉम्प्रीहेंड करना है कि ये जो डायग्राम है ये बोलना क्या चाह रहा है। थोड़ा हिंट आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, थोड़ा आप डायग्राम को समझने का ट्राई करेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज specifically mentioning this thing that the image can be seen on the surface of water। surface जो पानी का है, टैंक के surface पे इमेज आपकी फिश की वो है विजिबल, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है नेम द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज। ये जो इमेज आपकी सरफेस पे बन रही है, इसमें कौन सा फिनोमेना जो है वो देखा जा रहा है, तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, TIR। वाई? Because we know that in case of TIR, when a surface or a medium separates two different refractive indexes, दो अलग अलग मीडिया को जब सेपरेट करता है आपका एक इंटरफेस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेंसर से रेयर में जाने के टाइम, अगर लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयर, तो ये रिफ्लेक्ट होने की बजाय क्या हो जाती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है।
तो उस केस में आपका जो ये सरफेस है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक तरह से मिरर की तरह, है ना। मिरर भी तो यही करता है, इट एक्ट्स लाइक अ मिरर, कि आपका जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो सेम केस यहाँ पे हो रहा है, आपका जो सरफेस है टैंक का उस पर इमेज बन रही है, क्योंकि आपका जो सरफेस है वो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आपको कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका आपको दिया हुआ है μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको आपने दो अलग अलग लिक्विड में प्लेस किया है जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मेंशन्ड है μ2 एंड μ3, और एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका μ2 जो है वो सबसे बड़ा है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 एंड देन μ1 इज ग्रेटर देन μ3। तो ये आपको रिलेशन अलग से नोट कर लेना है, जस्ट फॉर अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग। नाउ दैट वी नो कि अगर लाइट रे इससे इसमें जाती है तो क्या होगा, और इससे इसमें जाती है तो क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ वुड अ पैरेलल इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द लेंस इन ईच ऑफ द केसेस शोन बिलो। तो अगर एक पैरेलल लाइट रे हम यहाँ पे ड्रॉप करें, इंसिडेंट कराएं, तो ये लेंस के बाद जो रिफ्रैक्शन होगा इसका वो किस तरह का होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर फिगर ए की बात करें तो लेंस जो कि है μ1 वाला और लिक्विड जो है μ3 वाला, तो ये डेंसर से रेयर में जा रहा है। इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर हम लेंस पहले रखें और लिक्विड बाद में रखें तो ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, यानी ये डाइवर्ज हो जाएगा, है ना। आई होप दिस इज नोन टू यू गाइस, दिस विल डाइवर्ज। ठीक है, और फिगर बी में ये जा रहा है डेंसर से, सॉरी रेयर से डेंसर, है ना। पहले आपने लेंस रखा है, बाद में अगर लिक्विड रखा है, तो ये जा रहा है आपका रेयर से डेंसर में, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए बात कि लाइट रे जब रेयर से डेंसर जाती है तो वो कन्वर्ज हो जाती है ना। सो दिस विल बी कन्वर्जिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। आगे चलते हैं। ऑलराइट, a scientist lowers a metallic ruler vertically into a transparent oil tank। अब ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपने रूलर लिया, ठीक है, और मेजरिंग स्केल या रूलर लिया और तो टैंक में डिप कर दिया, ठीक है, और फिर बोल रहा है कि जो रूलर है इट टचेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द बॉटम ऑफ द टैंक। बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको टच किया रूलर ने, जैसे आपका एक टैंक था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसको जैसे आपके रूलर ने टच किया तो एक रीडिंग नोट करी साइंटिस्ट ने कि ये वेट हो जा रहा है 25 सेंटीमीटर तक। जो रूलर है आपका वो वेट हो जा रहा है 25 सेंटीमीटर तक, यानी कि जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट की वो आपका 25 सेंटीमीटर उसने नोट किया। अब इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, लेट्स से कि आपने जो ऑयल टैंक है इसमें ग्लिसरीन आपने फिल किया हुआ है एक अलग ऑयल टैंक में, उसमें आपने 1.25 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ग्लिसरीन है उसमें आपने डिप किया एक अलग केस में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अप टू विच मार्क विल द रूलर गेट वेट इफ द साइंटिस्ट लोवर्स इट अप टू द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड है तो आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि एक अलग केस में साइंटिस्ट अगर एक ऑब्जेक्ट की इमेज देखता है, अब आप लोग अगर ऊपर से देख रहे हो और किसी ऑब्जेक्ट पे आपको रूलर टच करना है, इमेजिन कीजिए आप रूलर टच कर रहे हैं, तो आप इमेज देख के ही तो करेंगे। आपको थोड़ी पता है कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट की हाइट या डेप्थ क्या है, आपको डेप्थ नहीं पता है, तो आपको जो इमेज दिख रही होगी उस अकॉर्डिंग आप उसको रूलर को क्या करोगे, डिप करोगे। तो वही साइंटिस्ट ने किया, ठीक है, और इमेज तक अपना रूलर वो लेके गया और रीडिंग नोट कर ली, और वो रीडिंग आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज समवेयर इन द डेप्थ ऑफ एनी लिक्विड और एनी सब्सटेंस विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका जो इमेज होता है वो कहीं और बनता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट रे बेंड हो जाएगी जब आपकी आंखों तक आएगी, है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए, होप ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इसी डेप्थ को हम बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। नाउ एपेरेंट डेप्थ इज नथिंग बट इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं आर आई लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिस भी लिक्विड में हमने यहाँ पे डिप किया है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी अपेरेंट डेप्थ निकल के आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये रियल डेप्थ आपकी थी 25 सेंटीमीटर और एपेरेंट डेप्थ सॉरी आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.25, तो आपने ये डिवाइड किया, आपका कितना आ गया 20 सेंटीमीटर इज द एपेरेंट डेप्थ, यानी कि जो इमेज जहाँ तक रूलर डिप कर रहा है साइंटिस्ट ग्लिसरीन में वो है
20 सेंटीमीटर डेप्थ पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और केस, हाउ विल दिस लेंथ चेंज इफ अनदर लिक्विड ऑफ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, म्यू इज ग्रेटर देन 1.25, इससे भी बड़ा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दें तो क्या होगा? तो बहुत इजीली देख सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आप बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो लेंथ विल डिक्रीज, लेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा इमेजिनेशन अपने एक्टिवली ऑन रखें सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को। ओके, आगे चलते हैं। मिक्सचर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट रेज इज पास थ्रू अ कन्वेक्स लेंस, इट illustrated in the diagram below. State whether the ray passes through a single point or through different points on principal axis after refraction. Okay, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेंस के ऊपर आपने 3 different colors of light incident किया. Now you must be knowing this that with different colors wavelength differs. अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, और अगर अलग अलग वेवलेंथ होगी तो आपका जो बेंडिंग होगा लाइट का वो भी अलग अलग होगा, है ना। तो आपका जो बेंडिंग होगा लाइट का वो भी अलग अलग होगा, तो आपकी जो इमेज होगी ऑब्टेन वो भी अलग अलग होगी। तो डिफरेंट पॉइंट से इसका आंसर कि जो इमेज है वो क्या होगी, डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको ऑब्टेन होगी, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेम द इनविजिबल रेडिएशन विच इज स्टडीड यूजिंग द क्वार्ट्ज प्रिज्म। क्वार्ट्ज प्रिज्म कौन सी रेडिएशन है जो कि आपके क्वार्ट्ज प्रिज्म के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो? तो कौन सी है ये? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया डिफरेंट पॉइंट, सेकंड वाले का हो गया अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, यूवी रेडिएशन को आप क्वार्ट्ज प्रिज्म से स्टडी कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल भी हैं, आपको याद भी रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टेट वन ऑफ द यूज ऑफ द रेडिएशन मेंशन्ड यू इन अबव। ओके, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो यूवी रेडिएशन है, आपको इनका बताना है यूज केस क्या होता है। तो आई होप आपको कुछ तो आपको पता होंगे आपके डे टू डे लाइफ से। यूवी रेडिएशन हम आरओ वगैरह में यूज़ करते हैं हमारे, है ना, वाटर प्योरीफायर्स में यूज़ करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन हो गया एक, तो स्टेरिलाइजेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, डिटेक्टिंग ऑफ जर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, है ना, और प्रोड्यूसिंग ऑफ विटामिन डी में भी कर सकते हैं ना। इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस विटामिन डी तो उसमें भी हम कर सकते हैं। कुछ यूज़ केस हैं जो आपको अगर याद रहेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन टाइप ऑफ रेडिएशन विद द वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ रेडिएशन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन अबव। ओके, तो यूवी के कंपैरिजन में, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कंपैरिजन में आपको बताना है कि वेवलेंथ, ग्रेटर वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है वो कौन है। तो आई होप आपको स्पेक्ट्रम पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लें। गामा रेज होता है आपका लेफ्ट मोस्ट साइड, ओके, इस साइड पे आपका फ्रीक्वेंसी तो रहता है सबसे बड़ा और वेवलेंथ होता है कम। सबसे छोटा वेवलेंथ इस स्पेक्ट्रम में लेफ्ट साइड में होता है, और वही राइट साइड में आप जनरली रेडियो वेव्स ले लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ तो क्या होता है, बड़ा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम। ठीक है, तो अगर हम यूवी की बात करें तो कहीं ना कहीं विजिबल लाइट जो कि बीच में आप बोल सकते हो रहती है, विजिबल लाइट उसके लेफ्ट साइड में होता है यूवी। तो यूवी से राइट साइड में जितनी भी रेडिएशंस हैं, जितनी भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, सिंस राइट साइड में जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है। तो बहुत इजी है, आप बता दें विजिबल, आपका बता दें इंफ्रारेड, उसके अलावा कौन सी होती है आपकी माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई। तो ये सारे आप आंसर में दे सकते हैं। ऑल ऑफ दीज रेडिएशंस हैव मोर वेवलेंथ, है ना, ग्रेटर वेवलेंथ देन यूवी। आगे चलते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने 24 सेंटीमीटर ओके डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दी हुई है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर ऑफ द इमेज बताने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमको वैल्यू दी हुई है तो हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है ना। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, है ना। वैल्यूज को पुट कर देंगे, डिस्टेंस हम यू को रखेंगे, क्या रखेंगे, -24 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस है अगर तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, प्लस का 8 सेंटीमीटर, है ना। इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग तो हमारा v क्या निकल के आएगा बच्चों, इट विल बी अराउंड 12 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन भी मैंने करी हुई है आपके लिए, इफ यू कैन सी, आपका ये आ जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो रियल है ना, नेचर बतानी थी, रियल है और राइट साइड में है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाएगा, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। दैट वुड बी योर आंसर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, इस सेकंड का आंसर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
ओके, एक फेजर डायग्राम दिया हुआ था, डायग्राम बिलो शोज अ कूलिंग कर्व, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का आपको डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको बताया हुआ है कि अलग अलग टेम्परेचर पे आपका अलग अलग टेम्परेचर जो है वो कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, है ना। आपके सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है टाइम के साथ में। अब ये बोल रहा है स्टेट द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कंडेंसेस, कौन से टेम्परेचर पे कंडेंस हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 150 पे कंडेंस हो रहा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंशन द टेम्परेचर रेंज इन विच सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड स्टेट। ओके, तो चेंज किस में करेगा, ये कौन से रेंज में चेंज करेगा, ये आपका चेंज करेगा 150-60, ठीक है। 150 से 60 जब जा रहा है तो आपका ये चेंज होता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे स्लोप चेंज होता है तो आपका स्टेट भी चेंज होता है ना, सब्सटेंस का। तो आपका लिक्विड स्टेट में कब रहेगा ये, जब आपका 150 से 60 तक है, 60 के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स, द अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस in its liquid state is greater than the heat released when it is cooled by same amount in its solid state। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, स्टेट का, एक है लिक्विड स्टेट की बात हो रही है, एक सॉलिड स्टेट की बात हो रही है। बाकी हमने टेम्परेचर वगैरह सब सेम रखा है, ठीक है, बाकी हमने सब सेम रखा है। सॉलिड स्टेट की बात हो रही है एक तो, और एक आपकी बात हो रही है जब हमने कूल किया लिक्विड स्टेट में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब बाकी सब चीज़ें सेम है तो स्टेट की वजह से डिफरेंस आएगा, किसका आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में सी का डिफरेंस आने की वजह से ये बात एकदम सही है, ठीक है, ट्रू है ये एक बात कि आपका जो अमाउंट ऑफ हीट है वो लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड और मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना है और कैलकुलेशन भी सही रखनी है अपनी, दोनों चीज़ें आपका रहेगा तो आपको 4 मार्क मिल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ हो क्या रहा है। आपने एक बंसन बर्नर लिया, वहाँ पे आपने एक सब्सटेंस को हीट किया, बर्नर में आपने एक सब्सटेंस को हीट किया, ठीक है। तो उसका आपने एक जो भी टेम्परेचर है आपके बंसन बर्नर की वजह से, जो इसका बर्नर का टेम्परेचर है, ठीक है, फ्लेम का टेम्परेचर है, वो आपने सेम टेम्परेचर किसका कर दिया, सब्सटेंस का भी कर दिया हीट करके उसको, ठीक है। कॉपर है लेट्स से ये एक, ठीक है, लंप ऑफ कॉपर है ये, जिसको आपने हीट किया और उसके बाद मास दिया हुआ है उसका, उसके बाद कॉपर को क्विकली ट्रांसफर कर दिया पानी में, ठीक है, वाटर में आपने ट्रांसफर कर दिया इसको, यू ट्रांसफर्ड इनटू, ओके, वाटर में आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, किसको, लंप ऑफ कॉपर को, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ये सब के बारे में, हीट ट्रांसफर के बारे में, तो आपको पता होगा कि अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और आपने इसको यहाँ से यहाँ पुट किया तो दोनों क्या करेंगे, पानी का टेम्परेचर और स्टोन दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का ट्राई करेंगे, यानी कि जो ये हीट रिलीज करेगा उसको ये क्या करेगा, हीट को ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, क्या, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम, ठीक है। तो लेट्स से हमें सिंस पता नहीं है कि आपका टेम्परेचर क्या होगा जब इस स्टोन को, जब ये कॉपर को आप जब रख रहे हैं वाटर में, तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये हमें पता नहीं है क्या होगा, तो लेट्स से हमने उसको बोल दिया T, ठीक है, उसको हमने बोल दिया T। अच्छा, जब आपने पानी में रखा तो क्या हुआ, क्विकली ट्रांसफर्ड इनटू बीकर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, ठीक है, containing 0.84 kilograms of water and temperature of the water rose from 15 से 35 to 15 to 35। इसका इनिशियल टेम्परेचर होगा 15, वो 35 तक चला गया, ठीक है। तो ये भी अपने T टेम्परेचर से 35 तक गया होगा, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो इसका तो क्या हो जाएगा बच्चों, हीट रिलीज mc डेल्टा T में क्या आ जाएगा आपका T - 35, और इसको इक्वेट किससे करेंगे हम, वाटर के चेंज से, यानी कि वाटर का ट्रांसफर कितना है हीट का, m इंटू सी इंटू, अच्छा ये दोनों अलग अलग हैं, है ना, मासेस अलग है, सी अलग है, तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ है बेटा, इसका हुआ है आपका 35 - 15, फाइनल 35 था और इनिशियल कितना था 15, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, हीट लॉस बाय कॉपर इज हीट गेन्ड बाय वाटर, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया आपका 0.12 मास, 400 हीट कैपेसिटी, T - 35, और ये आ गया सेम जो हमने लिखा अभी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे फर्दर
तो आपका कुछ 1470 डिग्री सेल्सियस आएगा T-35। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये 400 और 4200 हमने लिखा है यहाँ पे C की वैल्यू, ठीक है। आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में कुछ और, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर और वाटर की 0.4 और 4.2 दी हुई है, लेकिन हमने यूज़ ये नहीं करी है क्योंकि ये जूल पर ग्राम्स में है दोनों, जबकि आपका जो सब्सटेंस है वो किलोग्राम्स में, तो यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, कन्वर्ट करके हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस विल बिकम 400, दिस विल बिकम 4200। ओके, नाउ क्लियरली इट कैन बी सीन दैट T इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1470 प्लस 35 विच इज 1505 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन एंड कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो सकता है। ओके, वन मोर अच्छा क्वेश्चन, वन मोर गुड क्वेश्चन। ओके, आपको एक बार दी हुई है बच्चा, एक मेटल रॉड दी हुई है AB लेंथ की, 80 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ है। इसको बैलेंस कर दिया है आपने 45 पे, यहाँ फुलक्रम लगा के 45 पे आपने इसको बैलेंस कर दिया, यानी कि इसकी जो आधी डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस, यहाँ पे बैलेंस नहीं हुई है ये रॉड, ठीक है। इट इज रादर बैलेंस्ड एट 45, ठीक है। आगे चलते हैं, दोनों तरफ से आपने 100 GF, ठीक है, आपने इसको लगा दिया है फोर्स, वेट से मतलब ये जो सस्पेंड कर दिए दोनों तरफ से बराबर, ठीक है। इफ दिस रॉड इज कट एट द सेंटर C, अगर C पे इसको कट किया जाता है, देन कंपेयर द वेट ऑफ AC टू वेट ऑफ BC, यानी कि इस पार्ट को बच्चों कंपेयर करना है हमें किससे, इस पार्ट से, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि जो C पॉइंट है वो तो मिड पॉइंट है आपका लेंथ वाइज, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है मिड पॉइंट लेंथ वाइज की, ठीक है। क्योंकि आपने जो फुलक्रम लगाया है वो तो आपने लगाया है 45 लेंथ पे, बैलेंस आपने 45 पे किया है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट, AC और BC, यानी कि AC, इसको मैं हटा देता हूं, AC वाली लेंथ और BC वाली लेंथ में जो है वेट का डिफरेंस क्या होगा। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि आपका जो BC होगा, जो आपका BC होगा वो AC से बड़ा होना चाहिए। क्यों सर, AC और BC तो इक्वल लेंथ पे है, बिल्कुल, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होने की वजह से, बैलेंस आपका यहाँ होने की वजह से ये बात बहुत एविडेंट और क्लियर है कि 40 से 45 आपका इसलिए गया है फुलक्रम क्योंकि इधर ज़्यादा वेट हुआ होगा, है ना। जो मूवमेंट इधर आ रहा है वो बड़ा है, जो टॉर्क का मूवमेंट है R क्रॉस F होता है ना, आपका टॉर्क, आपका जो टॉर्क होता है R क्रॉस F होता है, यानी कि फोर्स, और आपका जो डिस्टेंस होता है जहाँ से आप घुमा रहे हैं, जिस पॉइंट से जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं वहाँ तक, उसका डिस्टेंस होता है वो बड़ा है। इस केस में अगर आप देखें 45 से A तक का, ये छोटा है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इधर वेट का मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए, इधर वेट का मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए। और आप वैसे भी अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हैं इसको कि अगर ये 40 से इधर शिफ्ट किया गया है तो इधर ज़्यादा ही वेट हुआ होगा, है ना। सो द आंसर इज BC वुड बी ग्रेटर देन AC, वेट ऑफ BC वुड बी ग्रेटर देन वेट ऑफ AC, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, रीजन वही जो हमने समझाया आपको, ठीक है। अभी जो एक्सप्लेनेशन आपको दी है वही आपको लिख के आनी है एज इट इज, ठीक है, कि जो टॉर्क है A के अराउंड वो ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द लेंथ, तो आपका जो वेट का मूवमेंट है B की तरफ वो ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका जो वेट है उधर वाले पार्ट का, राइट वाले पार्ट का, BC वाले पार्ट का, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज स्टेट वेदर द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। Such type of questions you need to solve 100% with 100% accuracy, ठीक है। A person walks on a level road, फर्स्ट केस की बात करते हैं, A पार्ट, एक पर्सन अगर वॉक कर रहा है लेवल रोड पे, ठीक है, तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि आपसे वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा जा रहा है। आपको पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन फोर्स तो है नहीं, क्योंकि ये तो राइट साइड मूव कर रहा है। तो सिंस हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, तो देयर विल बी जीरो वर्क डन, ठीक है। अ पर्सन क्लाइम्स अ लैडर,
अगर कोई लैडर क्लाइंब कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस पे जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है वो तो इधर लगेगा पीछे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की तरफ। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी पैरेलल हो जाएं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वर्क क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट, अ कार इन अ न्यूट्रल गियर इज कमिंग डाउन द स्लोप। एक स्लोप है, वहां से आपकी जो गाड़ी है, जो आपकी कार है, वो क्या हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। काफ़ी इजी सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस आपको 100% सही करने। आगे चलते हैं। हेमिस्फेयर पे 4 पॉइंट रखें, ABCD। डायमीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। अ स्मॉल स्फेरिकल मास ऑफ 500 ग्राम एट रेस्ट, ओके। स्लाइड्स द स्मूथ सर्फेस ऑफ कप, अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट। ओके, आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। डायग्राम आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू डोंट नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम। ओके, अगर नहीं भी ड्रॉ दिया होता क्वेश्चन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। यू कैन इमेजिन अ हेमिस्फेयर एंड यू कैन मार्क फ्यू पॉइंट्स जो कि मेंशन है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट A रिलेटिव टू B, यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू B के रिस्पेक्ट में। तो B जो ग्राउंड पे है, लेट्स अज्यूम कि ये ग्राउंड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, आपने इसको ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड पे। तो B पे पोटेंशियल एनर्जी तो mgh आप जनरली लिखते हैं ग्रेविटी की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो तो जीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट ही नहीं है, ग्राउंड पे ही रख दिया। और यहाँ पे आपने A को रखा हुआ है R डिस्टेंस पे, अगर ये 2R है पूरा, तो ये हो गया R, और ये भी डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, R, है ना। तो mgh जब आप लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तो mg इंटू R हो जाएगा बेसिकली वो, ठीक है। अच्छा, रेडियस कितना होगा भाई, आपका डायमीटर है 360, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ, 180 सेंटीमीटर्स। बट वाइल सॉल्विंग द पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे मास इंटू जी इंटू एच। तो आप ध्यान दें कि जी आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेते हैं, राइट। जी आप किस में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 500 को भी आप कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोग्राम्स में, 0.5, और 10 तो एज इट इज आ जाएगा जी की जगह, लेकिन रेडियस को आप 180 नहीं लिख के 1.8 लिखेंगे, है ना। that's how you got your answer, 9 जूल। 9 जूल would be the potential energy at point A relative to point B के रिलेटिव है वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्पीड एट द पॉइंट B, लोवेस्ट पॉइंट B पे स्पीड क्या होगी। तो अगर कोई मूव कर रहा है, लेट्स से इस हेमिस्फीयर, उसके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी A पे थी वो ही कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में B पे, और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट कर नहीं रहा है यहाँ पे, केवल ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज समथिंग विच वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट यहाँ पे। तो हमको पता होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन से जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था वो ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा B पे, क्योंकि B के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, ग्राउंड पे है ये, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल इक्वल्स टू इसका काइनेटिक, तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं, दैट mgh नीड्स टू इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ओके। mgh नीड्स टू बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यहाँ से भी आ जाएगा आपका √2gh विच इज 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। कैलकुलेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, थोड़ा सा समझ में आ जाए तो। काइनेटिक एनर्जी एट D, अच्छा, अब D पॉइंट पे भी आपको पूछ लिया, A और B पे तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि A पॉइंट पे सारी काइनेटिक एनर्जी, सारी पोटेंशियल एनर्जी है, और B पॉइंट पे आप अज्यूम करो सारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना, क्योंकि B पॉइंट तो ग्राउंड पे है तो पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं उसके पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। A पॉइंट पे सारी काइनेटिक एनर्जी चली गई, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी चली गई, तो उस पर काइनेटिक नहीं है। लेकिन D पॉइंट पे आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों होगी, ठीक है। इस पर कुछ ना कुछ काइनेटिक भी होगी, इस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगी। तो आपको पूछ रहा है काइनेटिक कितनी है, तो काइनेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दैट वुड बी योर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करोगे टोटल से तो काइनेटिक निकल के आ जाएगी, है ना। एंड दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट योर काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो तुम निकाल चुके हो 9 जूल्स, राइट। टोटल एनर्जी तो आप निकाल चुके हैं 9 जूल्स, ठीक है भाई। टोटल एनर्जी क्या होगी, या तो A पे टोटल कितनी वो निकाल लो, B पे कितनी है निकाल लो, दोनों सेम आएगी,
क्योंकि mgh इक्वल्स टू हाफ mv², राइट। अच्छा, टोटल में से माइनस कर दो पोटेंशियल एनर्जी डी पॉइंट की, तो उस पॉइंट पे क्या बचेगी, केवल काइनेटिक बचेगी, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी बेसिकली आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, h कौन सा, ग्राउंड से डी तक का डिस्टेंस, तो टोटल है r, और ऊपर से आपको दिया हुआ है डायग्राम में r/3, नीचे है डी पॉइंट, तो नीचे से ऊपर कितना चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2r/3, सो इट विल बी नथिंग बट m इंटू जी इंटू 2r/3, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। सी, दिस इज योर आंसर, 6 जूल वुड बी योर, कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल -9 - 6 कितना हो जाएगा 3 जूल, 3 वुड बी योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलीज एज वेलोसिटी रेशियो 4, एक डायग्राम बनाना है जिसमें कि आपको ये पता चल जाए क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट, ओके। तो ये बात तो आपको बताना चाहिए कि अगर 4 वेलोसिटी रेशियो है तो यानी कि 4 पुलीज लगेंगी, नंबर ऑफ पुलीज कितना हो गया आपका 4, एफर्ट आपका अगर किसी लोड को आपको उठाना है, पुल करना है, तो एफर्ट भी नीचे ही लगेगा, ठीक है। तो 4 पुलिस का सिस्टम बनाना है जिसमें एफर्ट नीचे की तरफ लग रहा है, और उसमें आप टेंशन दिखा दें, टेंशन फोर्स जो कि सारे ऊपर लगेंगे चारों पुलिस में, और लोड आपको उठता हुआ दिखाना है। तो आपका कुछ डायग्राम इस तरह का बन जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 पुलिस आर देयर, यहाँ से आपने एक स्ट्रिंग निकाली, एफर्ट दिखाया आपने नीचे की तरफ, तो टेंशन ऊपर आ जाएगा अपने आप। यहाँ से ये स्ट्रिंग पास हो रही दूसरी पुलिस से, ये पास हो रही थर्ड पुलिस से, और ये पास हो रही है फोर्थ पुलिस से, और फिर यहाँ पे हुक के साथ आपने इसको एंड कर दिया। कहीं ना कहीं आप हुक करोगे ना स्ट्रिंग को, तो आपने यहाँ पे हुक कर दिया। तो सारी टेंशन फोर्स आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आ रहे हैं सारे टेंशन, एफर्ट आपने नीचे दिखाई दिया, और लोड आप दिखा रहे हैं कि नीचे की तरफ लग रहा है, ये लोड की वजह से फोर्स नीचे, ठीक है, ओके परफेक्ट। अगला सवाल, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय लोड ऑफ 100 kgf लिफ्टेड बाय दिस पुली टू हाइट ऑफ 5 मीटर। ये तो काफ़ी ईजी हो गया, आपको दिया हुआ है लोड का वैल्यू, ठीक है, और आपको दिया हुआ है हाइट, और जी का वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ गया, mgh हो जाएगा, आता ही है तो हमें कैलकुलेट करना है ना। कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, m इंटू जी इंटू एच, 100 इंटू 10 इंटू 5, 5000 जूल वुड बी योर करेक्ट आंसर, ओके। चलिए भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक सबको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन एंड हेयर्स इट्स echo after 3 seconds, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन, यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्लिफ। तो एक पर्सन है यहाँ पे बच्चों, इसने क्या किया, एक फायर की, गन शॉट फायर किया, यहाँ पे क्या था आपका, लेट्स से क्लिफ था, तो गन शॉट की वजह से जो साउंड होगा उसने ट्रैवल किया, ठीक है। एको की बात हो रही ना, एको मतलब दोबारा सुनाई दिया, तो ये यहाँ पे साउंड गया और रिटर्न हुआ, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो स्पीड इज डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप इसको यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो साउंड है वो ट्रैवल कर रहा है वहां तक और फिर वापस भी आ रहा है, तो 2D आपको लेना है बेसिकली, ठीक है। तो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो 2D क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, और D क्या हो जाएगा, सिंस हमें निकालना तो डिस्टेंस ही है, V इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। आपको 2D नहीं निकालना है, आपको निकालना तो डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्लिफ, यानी कि आपको निकालना तो D ही है, लेकिन यहाँ पे 2D क्यों लिखा आपने, क्योंकि आपका साउंड जो ट्रैवल करके आ रहा है वापस, उसकी स्पीड और टाइम दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है ना आपको, वो टाइम केवल यहाँ से यहाँ तक जाने का नहीं है, वापस लौटने का भी है ना, दोनों मिला के टाइम दिया हुआ है, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज दिस, ओके। आपको स्पीड दिया हुआ है, आपको टाइम भी दिया हुआ है, 3 सेकेंड पुट करें, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कितना होगा ये, 336 इंटू 3/2 विच इज 504 मीटर, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ he fires the gun again and this time the echo is heard 1.5 second later, then the first important है टर्म, बाकी तो सब कुछ सेम है
है ना, पहले के कंपैरिजन में 1.5 सेकंड लेटर सुनाई दिया, ठीक है। तो यानी कि आपका टोटल टाइम कितना हो गया, अब 3 सेकंड नहीं हुआ, वो हो गया आपका कितना 1.5 अगर आप कंपेयर करें तो, ठीक है। तो 1.5 इंटू 336 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 252 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे 336 आपका क्या है, स्पीड, 336 क्या है आपका स्पीड, ठीक है। तो v इंटू टी बाई 2, 252 मीटर, डिस्टेंस कितना मूव किया 252 मीटर्स। ये क्लिफ से डिस्टेंस नहीं है, क्लिफ से डिस्टेंस क्या है 504 माइनस 252, ये है आपका मूव करने वाला डिस्टेंस कि कितना आपने मूव कर लिया। 504 मीटर तो आपका क्लिफ से डिस्टेंस आया था बच्चों, ठीक है। जो डिस्टेंस मूव है उसके लिए हमने 1.5 यूज किया है, ये बात आप याद रखें। अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है क्लिफ से तो आप या तो 4.5 सेकंड लेके कर सकते हैं या फिर आप इसको इसमें ऐड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, एक सिचुएशन गिवन है, काफी रियल लाइफ सिचुएशन है, आप समझ सकते हैं। एक स्विंग पे एक बच्चा जो है वो स्विंग कर रहा है, ठीक है, स्विंग सेट पे, और आई थिंक हर मदर इज पुशिंग और पुलिंग और मे बी शी इज लाइक टेकिंग पार्ट इन दिस एक्टिविटी। ओके, तो इसको थोड़ा एनालाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्विंग जो है 3 पोजीशन से जा रही है, ABC, A and C आर एक्सट्रीम पोजिशन, ओके, B आपका मीन पोजिशन हो गया। विच इज द राइट पोजिशन दैट इज एट A, B और C फॉर द मदर टू गिव अ कंस्टेंट पीरियडिक पुश to the swing every time in the forward direction to increase the amplitude of the swing। okay, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स हैं, ये भी आपका हो गया एक्सट्रीम, ये भी आपका हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया मीन पोजीशन। नाउ यू नो दैट एट मीन पोजीशन अगर ये बच्चे की मदर मीन पोजीशन पे पुश करना चाहेगी तो वहाँ पे तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना, सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, तो उसका जो मोशन है वो रादर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना। जब आपका स्विंग आ रहा है और आपने यहाँ बीच में से ही पुश करना चालू कर दिया या रोक दिया इसको, तो आपका जो मोशन है वो तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ा दें आप उसका, है ना। तो हमें तो ऐसी जगह से पुश करना है जहाँ से हम और ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हैं स्विंग को, है ना, एम्पलीट्यूड को। तो वो कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, ए वाला पॉइंट। ए पॉइंट पे अगर आप पुश देते हो जो कि एक्सट्रीम पोजिशन है तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है। सो द राइट आंसर इज ए, पॉइंट नंबर ए, ठीक है। एवरी टाइम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको भेजना है तो, ठीक है। नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इन दिस, कौन सा फिनोमेना है, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस, रेजोनेंस क्यों, क्योंकि अगर रेजोनेंस होता क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मिलाते हुए अगर आप एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करो, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की वही फ्रीक्वेंसी आपकी एक्सटर्नल भी है, तो रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो आपका जो स्विंग सेट है वो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आया और जब वो आगे जाने वाला है और उसी टाइम पे आप अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा के पुश कर देगी अगर मदर, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, दोनों एफर्ट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाएगा। और आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा रियल लाइफ में, कभी अगर हमें किसी को पुश करना होता है जो स्विंग पे अगर एक्टिविटी कर रहा है तो हम उसको पीछे आता है जब सबसे ज़्यादा तब पुश करते हैं, तो उससे वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है उसका, ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ दिस फिनोमेना हेल्प्स टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ, जो हमने डिस्कस किया अभी है वही लिखना है आपको, ठीक है। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्विंग विल मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स अप्लाइड, रेजोनेंस भी यही बताता है, ठीक है। उस केस में आपका एम्पलीट्यूड जो है बढ़ जाएगा। ओके, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ आपको एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, सर्किट डिपिक्टेड इन फिगर इज एम्प्लॉयड फॉर स्टडिंग ओम्स लॉ। उसमें आपको 2 अलग अलग ट्यूब्स दी हुई हैं बच्चों, ट्यूब नंबर 1 एंड ट्यूब नंबर 2, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। एज यू कैन सी इट्स अ सर्किट, है ना। सर्किट में आपको बैटरी कनेक्टेड है, एमीटर कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, 2 ट्यूब्स है, ट्यूब 1 ट्यूब 2, 2 अलग अलग केसेस में इसको इवैल्यूएट करने को आपको बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेग्लेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आपको बताना है लेसर देन मोर देन इक्वल टू के हिसाब से कंपेयर कीजिए रेजिस्टेंस इन बोथ केसेस। 2 आपको केसेस दिए हुए हैं, उन दोनों में रेजिस्टेंस में आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक ट्यूब 1 एक ट्यूब 2 है, इन दोनों को आप जब लगाएंगे इस सर्किट में तो ट्यूब 1 में आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है ना, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए,
ज़्यादा होना चाहिए, राइट। और इसकी लेंथ थोड़ी कम है तो इसका रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है ट्यूब 1 का, वो ट्यूब 2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ट्यूब 1 का रेजिस्टेंस ट्यूब 2 से ज़्यादा होगा, ट्यूब 1 लेंथ में बड़ी है इसलिए, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, वोल्टमीटर रीडिंग्स इन बोथ केसेस। वोल्टमीटर रीडिंग तो आपकी सेम रहने वाली है बच्चों, है ना, सर्किट आपका सेम ही है, आप दो अलग अलग ट्यूब्स को कनेक्ट कर रहे हैं, वोल्टमीटर रीडिंग जो आपका वोल्टमीटर नोट करेगा वो तो आपकी सेम रहने वाली है ना, और कोई आपने चेंजेस की नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन बोथ केसेस। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि आप मटेरियल सेम है, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपको पता होनी चाहिए कि वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, है ना, मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करती है। तो ये बोल रहा है आपको मर्क्यूरी, ओके ओके, तो आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दोनों केसेस में वो भी क्या रहने वाला है, वो भी सेम रहने वाला है, क्योंकि आपका मटेरियल ही चेंज नहीं हुआ है। अगर मटेरियल चेंज होगा तो आपका जो है रेजिस्टिविटी चेंज होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एन अप्लायंस विद अ मेटल कवरिंग रेटेड एट 2 किलोवोल्ट एंड 220 वोल्ट आपको कनेक्टेड इस सर्किट में। आपको चारों डायग्राम्स को देखना है और बताना है कि विच इज़ द सेफेस्ट सर्किट, ठीक है, सेफेस्ट सर्किट। तो पहले अगर आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे रेटेड पावर के हिसाब से तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे जो ये फ्यूज़ दिया हुआ है, ये जो फ्यूज़ दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप करंट कैसे लिख सकते हैं भाई, पावर होता है आपका रेटेड पावर इज V × I, तो करंट कैसे निकाल लेंगे आप, P इज 2 किलोवोल्ट यानी कि 2000 वॉट डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट। नाउ दिस विल कम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 9.09 एम्पियर, ठीक है। अगर 9.09 आया यानी 9 से छोटा तो नहीं चलेगा, उससे बड़ा चल जाएगा एक बार के लिए। 9 से छोटा अगर आप लगाएंगे तो आपको सेफ नहीं मिलेगा सर्किट, है ना। तो 8 एम्पियर एंटी एम्पियर वाले तो कैंसिल हो गए, ये तो नहीं है आंसर आपका। अब सेफ इन दोनों में देखें तो इसमें जो है वो अर्थिंग ढंग से हो नहीं रखी है, हम बोल नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, है ना। क्लियरर डायग्राम हम एक्सपेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन में ऑल्दो, बट जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, एज फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, दिस डायग्राम डिपिक्ट्स प्रॉपर अर्थिंग। तो अगर कोई एक्स्ट्रा करंट आया भी तो वो अर्थिंग के थ्रू जो है ग्राउंड में पास हो जाएगा एंड इट वुड बी मोर सेफर। सो आंसर इज एस, ऑप्शन नंबर एस, ठीक है। राइट 2 रीजंस टू सपोर्ट बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई आपकी। सेकंड रीजन आपका क्या हो गया, आपका जो फ्यूज है वो अप्रोप्रिएट है और अर्थिंग जो है वो प्रॉपर हो रखी है एस वाले में, ठीक है। आगे चलते हैं, नाइक्रोम वायर है एक्स, उसका दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ वगैरह और 20 उसको कनेक्ट वो 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, और एक और नाइक्रोम वायर है वाई, दोनों नाइक्रोम वायर्स हैं और उसका भी आपको दे रखा है लेंथ वगैरह और आपको सेक्शनल एरिया भी दे रखा है। बोल रहा है कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एक्स एंड वाई। रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है बेटा। तो रेजिस्टेंस कंपेयर करना तो हम जानते हैं, हमको पता है रो L/A होता है रेजिस्टेंस। दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ में जो डिफरेंस है वो आप निकाल लीजिए, एरिया में जो डिफरेंस है वो लगा लीजिए। इसका x का तो L है और y का 2L है, वैसे ही x का A एरिया है, y का A/2 है। ये आप पुट करेंगे तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है उसमें आपको एक रिलेशन मिल जाएगा विच इज़ 1:4, ठीक है, जो कि आपका आंसर सीक कर रहा है, क्वेश्चन सीक कर रहा है। कंपेयर द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच वायर। इलेक्ट्रिकल पावर आपको अगर निकालनी है तो आप कैसे निकालते हैं, V²/R, है ना। दोनों का वोल्टेज आपको दिया हुआ है 10 और 20, तो आप वो पुट करें, V²/R तो हो जाएगा x का, और V की जगह 10 आप पुट कर देंगे और V²/R में 20 पुट कर देंगे आप y की जगह, लेकिन R यहाँ पुट नहीं करना है क्योंकि जो ये फॉर्मूला है V²/R, इसमें R y के केस में 4R है ना, y के केस में 4R अभी निकाला है आपने यहाँ पे रेशियो, तो आपको वो ध्यान देना है, ये एक गलती है जो हो सकती है हमसे। आगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट करते हैं, कंपेयर द मासेस। अब मास कैसे निकालें सर, मास का तो इसमें कुछ मेंशन ही नहीं है, तो मास जब भी आएगा ऐसे केसेस में या अधिकतर केसेस में आप डेंसिटी को याद रखें, ठीक है। सो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा वायर का, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं डेंसिटीज़ को, एक की लेंथ L है, एक की लेंथ 2L है। डेंसिटीज़ दोनों की सेम होने वाली है, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मटेरियल की दोनों नाइक्रोम वायर्स के हैं, तो डेंसिटीज़ दोनों की सेम रहने वाली है, ठीक है। दोनों की केस में इसमें A और इसमें A/2 हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 1:1।
यानी कि जो मास है दोनों का, उनका रेशियो क्या है 1:1। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रू या फॉल्स, वायर एक्स एंड वायर वाई बोथ शो द सेम राइज इन टेम्परेचर इन द सेम टाइम। राइज इन टेम्परेचर आपको निकालना है, तो राइज इन टेम्परेचर आप निकाल के देख लें चाहे तो। ठीक है, वैसे तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सेम रहेगा, पर आप निकालें इसको। ठीक है, निकालेंगे तो आपको मिलेगा, इसका हो जाएगा mc डेल्टा टी। m को आप अगेन लिख सकते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया, v² r इंटू पी इंटू टी। यह आपका आया p यानी कि पावर ऑफ x मल्टीप्लाई बाय टाइम। यह आया आपका इसमें हीट। ठीक है, इसमें टेम्परेचर रेज जो आप निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये आएगा आपका p इंटू टी सेम फॉर y, यानी कि दोनों का सिंस पावर x और पावर y जो है रेशियो 1:1 होल्ड करता है, दोनों का जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो होगा सेम, वो होगा सेम दोनों वायर का। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो बेहतर है। 3 बल्ब्स ऑफ पावर P1, P2 एंड P3, जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि जो सबसे बड़ा है वो है P3 और जो सबसे छोटा है वो P1। दे आर कनेक्टेड इन अ सर्टेन वे, बताया नहीं कैसे कनेक्ट किया है, बट उनको ये बताया है कि P3 जो है वो ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। तो आपका कनेक्शन कैसा होना चाहिए, तो आपका कनेक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों, कनेक्शन आपका होना चाहिए पैरेलल। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सब में सेम जाएगी। ठीक है, सब में सेम जाएगी, तो वो डिपेंड ही केवल रेटेड पावर पे कर जाएगा। फिर समझ रहे हैं आप इस बात को। अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप सब में अलग अलग जाती है, सीरीज में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। ठीक है, तो आपका कंपैरिजन आपको पावर के बेसिस पे करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको बताना तो केवल यहाँ पे पावर के बेसिस पे, रेटेड पावर के बेसिस पे। तो आप बता पा रहे हैं कि P3 जो है सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है क्योंकि उसका रेटेड पावर सबसे ज़्यादा है, और आप ये तब बता पाएंगे जब आप उसको पैरेलल कनेक्शन में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। आगे चलते हैं। कंपेयर द वोल्टेज अक्रॉस दिस बल्ब्स। वोल्टेज तो अभी हमने डिस्कस किया ही है, क्या रहने वाला है आपका सेम, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। तीनों का वोल्टेज क्या रहने वाला है, सेम। विल द सर्किट स्टिल फंक्शन इफ वन ऑफ द बल्ब्स इज फ्यूज्ड। बिल्कुल, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है। आपके घरों में आपको पता होगा, आपके हाउस होल्ड्स में यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर इज अ पैरेलल कनेक्शन, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, so that if one device is become non functionable, तो आपका बाकी जो सर्किट है उसको फर्क नहीं पड़े, उसको अफेक्ट ना हो, इसलिए उसको पैरेलल में रखा जाता है। तो ये यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आंसर होगा यस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। द गिवन डायग्राम शोज द आउटपुट ऑफ AC जनरेटर। ओके, द स्पीड ऑफ द जनरेटर इज डबल। अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, डबल कर दी स्पीड को, आपने कर दिया 2 टाइम्स। ठीक है, तो फिर ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जैसे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेटेड बाय ए। अब ये डायग्राम है इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम का, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ भी डबल हो जाएगा अगर आपकी क्या डबल हो गई है, स्पीड। सेकंड पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेटेड इज बी। अब बी बता रहा है आपका टाइम, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका डबल हो जाती है स्पीड तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम हाफ हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी हाफ्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अभी बताया मैंने आपको, स्पीड बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी, AC जनरेटर में फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से टाइम हो जाएगा हाफ। ठीक है, सो इफ स्पीड इज डबल दैट मीन्स साइकिल टाइम ऑफ साइकिल विल बी हाफ। एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, कोरिलेशन दिया हुआ है हमको कुछ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ABCDE का पीरियोडिक टेबल का। अब आपको बताना है कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे, तो ग्राफ हम देखेंगे। पहले तो ग्राफ आपको दिया हुआ है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, कुछ कैलकुलेटिव होंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग होंगे, कुछ नॉलेज बेस्ड भी होंगे, जैसे कि आपने अभी देखा है ना। चलिए, आइडेंटिफाई द रेडियोएक्टिव रेडिएशन एमिटेड व्हेन एलिमेंट C डीकेज इनटू एलिमेंट E। ओके, C जो है वो E में जा रहा है, C जो है वो E में जा रहा है। ठीक है, C से E में जाने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक तो उसका न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम हो गया है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बढ़ गया है। भाई यहाँ पे होगा 91, 92 और 93, तो 92 से 93 नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया है। अच्छा सर, न्यूट्रॉन भी तो कम हुआ है, पर मास नंबर पे फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ भी तो गया है ना।
तो इसका क्या मतलब है कि बीटा, कौन से वाले की बात हो रही है इसमें, डीके कौन सा है ये, बीटा, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन भी आप बना सकते हैं बीटा डीके की, बहुत इजी है। आपका जो ये सी एलिमेंट है 92 238 वाला, ये 93 238 में जो है बदला है इसका जो प्रोडक्ट बना है, तो साथ में इसने एक बीटा पार्टिकल को निकाला है, तो कौन सा डीके हुआ, ये बीटा डीके, ठीक है। आपका ये हो गया -1 क्योंकि आपका प्रोटॉन बढ़ गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द एलिमेंट्स डी एंड ई। कौन सा है भाई डी एंड ई, डी और ई। अच्छा, डी और ई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है सेम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। सो द आंसर वुड बी आइसोटोप्स, ओके। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं। इफ एलिमेंट सी ट्रांसफॉर्म्स इनटू एलिमेंट बी, सी से बी में जाना है, बाय एमिटिंग अ रेडियो एक्टिव रे, हाउ विल दिस रे बिहेव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, वो आपसे केवल ये नहीं पूछना चाह रहा है कि अगर आपका सी से बी आएगा तो कौन सा डीके होगा या क्या निकलेगा, है ना, लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो भी पार्टिकल निकलेगा यहाँ पे, ये जो भी यहाँ से रेडिएशन निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगी, वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं। सी पे आपका 92 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, बी पे 90, यानी कि 92 से 90 हो गया ये प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये था हमारा 146 और ये कितना हो गया 145 और 144 हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स तो 2 कम हुए और न्यूट्रॉन भी 2 कम हुए, तो यानी मास नंबर 4 से कम हुआ है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये कुछ देखा कुछ सुना सा लग रहा है आपको। अल्फा पार्टिकल 214, अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ेगा अल्फा पार्टिकल, है ना, पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिड्यूस द क्वेश्चन, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पेपर बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।